Hi everyone, this is Chandan and you are watching the learning field. So as you see on the thumbnail that today's video's topic is what to do and what to not do in the upcoming 30 days for your session net exam. You all know that session net exam will be occur on 15th Feb to 28th Feb. That means approximately 30 days of time have in your hand, right? So, what is the preparation? What will be the preparation for this 30 days, the last 30 days for your preparation? So, I think most of you are evaluating for this video, this type of tips and strategies. So, I'll discuss some tips and strategies with you, learners, for your upcoming 30 days preparation. So we start from part A, right? So we all know that there are part A, part B and part C in our paper. And first we start with part A. And we all know that part A has 30 marks. Part A will have 30 marks, right? And these 30 marks is very, very important for JRF. I think most of you are agree with me that the marks of part A is very important for the JRF because sometimes it occurs that for 3 or 4 marks, for 1 mark, for 0.5 marks, we don't get JRF. And if we get these 3 to 4 marks or 5 marks or 0.5 marks from part A, we can secure from this marks part A with a very easy strategy. So that is why the part A is important for us, right? So how to prepare or how to take part A or how to practice part A for the upcoming 30 days. So I think many of you are already prepared part A for your preparation and many of you are not prepared for not prepared part A previously for your upcoming exam. And you find that how to prepare this 1 month or approximately 30 days for your preparing part A, right? So I will suggest you those who are already prepared and those who are not prepared part A. So this tricks is basically for those who are not preparing part A previously. So each and every day, 30 days, you have 30 days, approximately 30 days, right? So each and every day you take one paper, one previous year paper, okay, previous year paper of part A and give the exam. Give the exam. You create an atmosphere like an exam hall and you just you just write this 20 GA questions paper according to your exam or as take these 20 general aptitude questions like an exam point of view, right? So hard daily एक paper या फिर if possible if you can also practice 2 paper. So for those who are very busy with your subject, then I will suggest you at least one paper each day, right? At least one paper each day from the PRQs. You just give the exam and you secure your marks. Suppose first exam you can do 5 questions and you are all from science background, so definitely you can do at least 5 questions from the 20 questions, right? So 5 question means here 10 marks, right? So 5 question means 10 marks. And now suppose first day you make 5 question correctly. And one more thing is that the time, right? So the time is also very important. Maximum 25 to 30 minutes you give to solve the part A questions. Maximum to maximum, right? So you just take this 25 to 30 minutes each day up in upcoming 30 days and take a paper of PYQs, right? Basically, you can take the most previous paper like most like 2024, 2023, 2022 or 2021 or 2020. The most previous papers you can choose and then the previous papers you can choose and take 25 to 30 minutes and just give it as an exam and you collect your marks. I can definitely sure that
in each day your marks will increase 1 marks or 2 marks or like that, or you may stable on that, then you can try the questions. And one more thing is analysis, right? The paper analysis is very important. Analysis, you can choose any book or questions paper, and if you got, you can easily got the solutions also. So first directly you take the questions and try to solve, and try to solve, right? And if you are not able to solve the questions in between 25 to 30 minutes, first after 30 minutes you check your own papers and check the answer, how many questions you correctly done, right? So you can first check the number of questions you correctly done, and after that you check which questions you wrongly approach, or which questions you did wrong, right? Like that, right? So this is your work in upcoming 30 days. This is your work in upcoming 30 days for part A. For part A, that is general aptitude, right? हर एक दिन को एक एक पेपर उठाओ एंड उसको एज एन एग्जाम डे 25 टू 30 मिनट्स लो, एंड वो एग्जाम की तरह लिखो, पेपर में पूरा प्रैक्टिस करो, एंड कौन सा आंसर आ रहा है वो मार्क करो, देखो आपका कितना मार्क्स मान रहा है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट सपोज 10 मार्क्स बना कि 8 मार्क्स बना कि 12 मार्क्स बना कि 20 मार्क्स बना, जो होगा होगा, ठीक है? बट हर एक डे एक एक पेपर उठाओ एंड उसको एज एन एग्जाम अब दो, कितना मार्क्स आ रहा है देखो, एंड देन उस पेपर की एनालाइज करो, ठीक है? जो क्वेश्चंस आपसे बनेगा ना वो आप रखो, जो नहीं बन रहा है मतलब बहुत दिक्कत दे रहा है उसको आप छोड़ दो, ठीक है? ऐसे ही छोड़ दो, वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है? तो ऐसे करके आप पार्ट ए प्रिपेयर करो. नेक्स्ट comes to part B. I think you all already read your subject papers, and in last 1 month I can assume that no one can मतलब कुछ लोगों को और बाकी नहीं है पढ़ने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए, ठीक है? तो पार्ट ए आई थिंक आप तो PIQs लगा ही रहे हो, ठीक है? तो PIQs जैसे लगाओ, सब लगा रहे हो वैसे ही लगाओ. इस 1 मंथ में थ्योरी कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है, एंड टाइम पे क्वेश्चंस को अप्रोच करना एंड सॉल्व करना, वही असल फंडा है एग्जाम हॉल का, ठीक है? तो एग्जाम हॉल में बहुत दिक्कत आएगा, वो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ, ठीक है? एज पर माय एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल में दिक्कत आएगा ही आएगा, ठीक है? इतना अच्छा एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा कंप्यूटर भी नहीं मिलेगा, ना स्टाफ भी अच्छा नहीं मिलेगा. वो आप मेंटली प्रिपेयर पहले से करके जाओ कि एग्जाम हॉल तुम्हारा अच्छा नहीं है, बट उस सिचुएशन में हाउ कैन you handle this thing, this is main important thing, and this is becoming your target and mental preparing phase for upcoming 30 days and with the question practice, right? So PIQs में PSQs करो, एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए मैं जो बताऊंगा आपको ना, वो आप मॉक टेस्ट, इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है. आई थिंक सब लोगों का सिलेबस शेष हो गया है, ठीक है? मॉक टेस्ट दो, ठीक है? मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? मॉक टेस्ट मतलब एक दिन में पूरा एक 3 आवर्स का पेपर दो, ठीक है? 3 आवर्स का पेपर दो, कितना मार्क्स आपका बन रहा है आप देख लो, ठीक है? तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने तो आई थिंक पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एंड आइटम में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है वही इस साल में ही आप ले सकते हो. मैंने जैसा कि आई थिंक दीप्स का बोला था, इनको स्टडी का बोला था, मैथमेटिकल पाठशाला का बोला था, आई थिंक SB टेक मैथ का बोला था, आई थिंक और एक बोला था गुरुकुल, आई थिंक गुरुकुलम इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ 5 मैंने बोला था, ठीक है? तो कोई एक मॉक टेस्ट उठा सकते हो, एंड इसके अलावा भी आप PW के मतलब फिजिक्स वाला की मॉक टेस्ट भी उठा सकते हो, ठीक है? PW का मॉक ये मतलब सबसे कम दाम में आपको मिलेगा, आई थिंक 399 में आपको मिल जाएगा, एंड ऑफर वगैरह है तो इससे भी कम दाम में आपको मिल सकता है, ठीक है? तो आप इसका भी उठा सकते हो. मतलब मॉक देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मॉक मतलब मैं भी मॉक लिया था, मैं भी 2-3 इंस्टीट्यूट का भी मॉक ट्राई किया हर एक बार, ठीक है? बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि बहुत लोग पता था कि इसका मॉक लो ये कॉमन आ जाएगा, इसका मॉक लो ऐसा, इसका कॉन्सेप्ट कॉमन आता है, बट ऐसा कभी नहीं होता है एग्जाम पे. वो सब गजब कहानी है, वो सब कहानी है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, आप देख रहे हो कि ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है पूरा के पूरा ट्रेंड ही चेंज हो रहा है क्वेश्चन का. ये तो आप मेरे साथ मतलब एग्री करोगे कि हर एक ईयर में ऐसा कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं, एंड
जो इंस्टीट्यूट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा ना, उसका वो मतलब इसका बात ही नहीं है कि वो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ सके। तुम देखोगे ऐसे अभी तक भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सीसा नेट में रिसेंट ईयर में आया है ना, जिसका क्वेश्चन अभी भी यूट्यूब पर कोई जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है वो नहीं डाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है भाई। तो किसी का गेस करने का मतलब, जो गेस करके वो तो सेट कैसे बनाता है। सपोज आप कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का या ले लिया मॉक टेस्ट, तो आप मतलब आपको दिमाग में यही चल रहा है कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले लिया तो मेरा केस में की क्वेश्चन कॉमन आ सकता है या फिर कॉन्सेप्ट कॉमन आ सकते हैं। बट ऐसा ऐसा भ्रम में मत पड़ना भाई, ये नहीं होगा कभी। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो कोई भी एक मॉक टेस्ट उठाओ, जस्ट द पर्पस ऑफ टू, मतलब क्या बोलूं मैं, द पर्पस ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट इज टू मैनेज टाइम, टू मैनेज टाइम। ठीक है, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका क्वेश्चंस का अप्रोच करने का तरीका क्लियरर होता जाएगा एंड यू हैव इम्प्रूव डे बाय डे हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। सपोज कोई एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब पेपर दोगे कोई एक, तो उस पेपर का मतलब पेपर इजी है या फिर टफ है, तो कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, मतलब आप सोच सकते हो आई थिंक कि कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो ना, वही असली खेल है एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जाम दे चुका हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चंस का टैकल करना, क्योंकि कंसेप्ट सबके पास अच्छा है, सभी ने सभी बहुत मेहनत करते हैं एंड मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, जो लोग एग्जाम देने जा रहा है ना उससे ज्यादा परसेंटेज, ठीक है, मतलब सपोज 100 लोग एग्जाम देने जा रहा है ना, तो उसका आई थिंक 70 to 80% जो है वो बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा है। सो दे हैव इनफ नॉलेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, दे हैव इनफ नॉलेज एंड 20% जो है नया जा रहा है आई थिंक। बट जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो सभी ने बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं उसमें से ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा, तो जो बोल रहा हूं मैं कि सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब कॉन्सेप्ट आता है, बट फेल मैं कहां पर होता हूं, या फिर आप लोग जो मेरे तरह ऐसे दे रहे हो एग्जाम, फेल कहां पर होता है ना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मेरे से होता है एग्जाम हॉल ठीक से टैकल नहीं हो रहा है, हॉल ठीक से नहीं जा रहा है, तब यही असली कारण है बहुत सारा लोगों का नेट ना लगने का, मतलब नेट ना होने का। ठीक है, जैसे ये मेरा केस में भी है, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस में यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जाम दे चुका हूँ। ठीक है, मैं मुझसे ज्यादा फेलियर ना आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, मैं बहुत बार फेलियर हुआ हूँ। ठीक है, तो एक फेलियर आदमी जो बोलेगा ना, आई थिंक वो आप लोग मतलब ठीक से लोगे तो आई थिंक वही बोल सकते हैं कि कहाँ आप फेल कर सकते हो। जो फेल ना होगे वो फेल होने का मतलब जो रीजन हो सकता है वो कभी नहीं जानेगा। जो एक बार में उतर जाएगा ना, वो कभी आपको उतना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ कहाँ गड्ढे में गिर सकते हो। ठीक है, मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा एंड मॉक टेस्ट उठाओ एक। मैं जो मॉक टेस्ट बोला आगे बोला था वही बोल रहा हूँ एंड पीडब्ल्यू का मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कि पीडब्ल्यू का मतलब ठीक ठाक है ना, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि ये सबसे अच्छा है। फर्स्ट 3,399 आई थिंक या फिर 499 आई थिंक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब जो आई थिंक 15 सेट मिलेगा, 15 to 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, तो ये आप जा सकते हो इसके साथ, क्योंकि आपको मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एंड क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में टैकल करने का एंड वो 3 आवर्स जो मैंने वो एग्जाम हॉल का 3 आवर्स, इस 3 आवर्स को कैसे टैकल करना है वही मेन फंडा है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप मॉक उठाओ एंड जो मॉक आप उठाओ पूरा एक दिन में एक टेस्ट दो 3 आवर्स का, देन उसके बाद 4 to 5 आवर्स लगाओ उसको एनालाइज करने में। ठीक है, जिसका पॉसिबल है, नहीं तो आप 2 दिन में एक टेस्ट लगाओ बाकी पढ़ो, मतलब हर एक ऑल्टरनेट डेज में एक टेस्ट लगा सकते हो एंड उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही था मेरा मतलब अपकमिंग 30 डेज का आपके लिए स्ट्रेटेजी या फिर टिप्स। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड मॉक का पेपर एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज यहीं पर खत्म करता हूँ एंड आप लोगों का कोई क्वेरीज है या फिर कोई कुछ है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, चलो गुड नाइट।